Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Frontier Institute of Medical Sciences. Today we will be discussing about parenteral route of drug administration. As we are discussing the routes of drug administration from the last one or two lectures, and today is the last lecture about the routes of drug administration. So let's recall the previous lecture. Route of drug administration is defined as the methods which are used to administer a drug into the body में एक ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं they are known as routes of drug administration. So we has broadly classified routes of drug administration into two classes, enteral route and parenteral. Enteral route was when the drug is given through GIT. GIT में फिर हमने उसके 3 सब टाइप्स पढ़े थे, oral route, sublingual route and rectal route, and we have discussed about the examples, the advantages and disadvantages of each route in detail. Today we will be starting about the second main group or class of routes of drug administration, that is parenteral route of drug administration. So let's start with the definition of parenteral routes of drug administration. So par means besides and enteral means gastrointestinal tract. So it can be defined as administration of a drug other than enteral route is known as parenteral route of drug administration. मतलब इससे पहले जो हमने जितने भी एंटेरियल रूट्स पढ़े हैं उसके अलावा, फॉर एग्जांपल रेक्टल रूट, सबलिंगुअल रूट और ओरल रूट के अलावा जितने भी रूट्स हैं, अगर उन्हीं के थ्रू हम कोई ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो उसी को कहते हैं पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसकी एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन वोलाइट एम विच इज गिवन इंट्रामस्कुलर. अब इंट्रामस्कुलर इज अ रूट अदर देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम. सो सिंपली इंट्रामस्कुलर रूट को हम पेरेंटल रूट कहेंगे. इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन विच इज एन एंटीबायोटिक विच इज गिवन थ्रू इंट्रावेनस रूट. कैप्सूल टायोवेयर गिवन थ्रू इनहेलर. क्रीम्स ऑइंटमेंट्स हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर. इसके अलावा इंसुलिन्स को और क्लेक्सेन को हम लगाते हैं उसकी वजह से सबक्यूटेनियस लगाते, स्किन के नीचे लगाते. तो ये देखिए इसमें जितने भी बहुत सारे एग्जांपल जो हैं इनमें से कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो हम इंटेस्टिनल ट्रैक के थ्रू दे रहे हैं. तो ये सारे मेथड which are used, which are administered other than gastrointestinal tract is known as parenteral route of drug administration. So classification of enteral routes of drug administration is broadly classified into 3 main subclasses: injections, inhalation and topical. These are the 3 main subclasses of the parenteral route. जिस तरह enteral route में there were 3 classes: oral route, sublingual and rectal route. इसी तरह parenteral में there are 3 basic classes of parenteral routes, 3 types of parenteral routes: injections, inhalation and topical. So we will discuss one by one in detail. So the first was injection. It's the type of parenteral route of drug administration which is given through syringe
with the help of syringe or through infusion apparatus। तो ये वो मेथड है जिसमें हम एक सिरिंज के थ्रू या इन्फ्यूजन के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज नोन एज इंजेक्शन। तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। फर्स्ट वन इज इंट्रावीनस विच इज गिवन इनटू अ वेन, जो हम रग में लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर गिवन इनटू द मसल, जो गोश में लगाते हैं, मसल में लगाते हैं। सबक्यूटेनियस, जो हम स्किन के नीचे चमड़े में लगाते हैं, इस तरह इंसुलिन हो गया, क्लेक्सेन हो गया। एंट्राडर्मल, स्किन के नीचे लगाते हैं। एंड एंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलर मीन जॉइंट, तो जिस तरह आर्थराइटिस के मरीजों में उसमें लगाते हैं एंट्रा आर्टिकुलर हम लगाते हैं टू ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ arthritis. So these are the further sub types of injections. We will discuss one by one. So the first one was intravenous. It's the type of drug injected into the peripheral vein is known as intravenous route. Intravenous में हम simply drug को administer करते हैं into the vein with the help of syringe or infusion apparatus. अब सिंपली इंजेक्शन के थ्रू सेफ्राक्सोन लगाते हैं या ड्रिप के थ्रू हम ड्रिप लगाते हैं। सो दीज आर इंट्रावीनस रूट्स, और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है डेट इज 100%। इट इज बोलस, टू मेथड्स, वन इज बोलस इंजेक्शन एंड द अदर इज इन्फ्यूजन। बोलस इंजेक्शन इज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। जब सिरिंज के थ्रू हम पेरिफेरल वेन में कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, दैट इज नोन एज बोलस इंजेक्शन। और व्हेन इट इज डन विद द हेल्प ऑफ infusion chamber, that is known as infusion. So there are two methods simple through which we can give a drug intravenous. One is injection and the other is bolus injection and the other is infusion. So this is intravenous route of drug administration. Advantages, इसकी advantages जो है it's rapid action। जो ही हम ड्रग इंट्रावीनस देते हैं तो उसकी क्विक, इमीडिएट और रैपिड एक्शन होती है। सेकेंड इज यूज फॉर इमरजेंसी कंडीशंस। जितने भी इमरजेंसी कंडीशन में जब मरीज़ को लाते, फॉर एग्जांपल एक मरीज़ को फिट्स पड़ रहे हैं, उसको दौरे पड़ रहे हैं, और सिंपली उधर आके हम मेडाजोलाम देते हैं, डाइज़ेपाम देते हैं, तो बहुत जल्दी जो है पेशेंट रिकवर हो जाए। तो इट्स कैन बी यूज़ फॉर इमरजेंसी कंडीशन। या अगर किसी पेशेंट में ब्लड लॉस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका बीपी कम है, तो हम बहुत क्विक आंसर के लिए, इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम कैनोला पास करके आईवी फ्लूइड्स लगाते। इट्स हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज 100% ऑफ द drug goes into the systemic circulation and it's available to produce its therapeutic effects. Rate of drug administration can be controlled according to the patient's response. जब हम syringe के थ्रू देते हैं, इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, तो जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेथड होती है दैट इज वेरी दैट कैन easily be used that can be controlled according to the patient response. Large volume of drugs can be given. इसी मेथड के थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स इजीली हम पेशेंट को दे सकते हैं। जिस तरह आईवी फ्लूइड्स हो गए, 1 लीटर हम रेंगर लेक्टेट लगाते हैं, या इसी तरह तो लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स हम दे सकते हैं। एंड इट्स द 100% बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। एज आई मेंशन बिफोर that 100% bioavailability of the drug, we can use it for the patient के लिए 100% जो है वो ब्लड जाएगा into the systemic circulation और वो अवेलेबल होगा to produce its therapeutic
effect. So all these are the advantages of intravenous route of drug administration. The disadvantages of intravenous route of drug administration, the first one is that is required trained persons. Not everybody is able to give a drug through इंट्रावीनस रूट. इंजेक्शन लगाना, कैनुला पास करना, इन्फ्यूजन लगाना, इसके लिए एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है. हर कोई इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और कैनुला के थ्रू इंट्रावीनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता. प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक बहुत ज़रूरी होता है. इरिटेशन ऑफ द वेन, बाज़ ड्रग्स की वजह से लोकली जिस पेरिफेरल वेन में हम ड्रग एडमिनिस्टर करते उसकी इरिटेशन होती है, उसकी स्वेलिंग होती है. इट्स एन एक्सपेंसिव मेथड. जितने भी इंट्रावीनस ड्रग्स है या इन्फ्यूजन फॉर्म में जितने भी ड्रग्स है दे आर नॉट इकोनॉमिकल, दे आर अ बिट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. जिस तरह फॉर एग्जांपल सेफेक्साइम है, सेफ्ट्राइजोन है, तो ओरली दे उसकी कीमत जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू देयर इंट्रावीनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये these are the disadvantages. The second type is that is intramuscular. Intramuscular is the type in which drug is injected into the muscle with the help of a syringe, that is known as intramuscular route of drug administration. So इसकी कॉमन साइड जो है हम थाई में देते हैं, डेल्टॉइड में देते हैं, ग्लूटस मसल में देते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ सिरिंज सिंपली मसल में हम देते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल वो लाइट एम है वो हम इंट्रा मस्कुलर लगाते हैं, या टीटी का जो इंजेक्शन है वो हम इंट्रा मस्कुलर लगाते हैं, या वरीन हो गया विच इज गिवन थ्रू इंट्रामस्कुलर. इसकी एडवांटेजेस, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज फास्टेस्ट देन द सबक्यूटेनियस रूट. सबक्यूटेनियस रूट की बनस्बत इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट है. इट्स अ रिलायबल मेथड एंड डिपोर्ट प्रिपरेशंस कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. डिसएडवांटेजेस like intravenous route, जितने भी इंजेक्शन है नीड अ trained personalities, trained persons. aseptic techniques are very important. irritation of the muscle, जिस तरह इंट्रावीनस में इरिटेशन ऑफ द वेन होता था एक डिसएडवांटेज, इसी तरह इधर इंट्रामस्कुलर में मसल की इरिटेशन, मसल की स्वेलिंग, लोकल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इट्स कॉमन डिसएडवांटेज. जिस तरह टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं तो 1 or 2 days और लोकली टेंडर होता है वही रीजन. इंजरी टू अंडरलाइंग नर्व, क्योंकि मसल के नीचे नर्व्स पड़े होते हैं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते वक्त हम नर्व को इंजर कर सकते हैं. जिस तरह डेल्टाइड में इधर एक एक्सिलरी नर्व है तो ऑक्सिलरी नर्व को हम डैमेज कर सकते हैं, या ग्लूटल रीजन में अगर हम इंजेक्शन देते हैं तो उधर शियाटिक नर्व को हम डैमेज कर सकते हैं. तो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ड्रग्स कैन नॉट बी रिमूव्ड वंस गिवन. वंस हमने मसल में ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते. एंड द बायो अवेलेबिलिटी इज लेस देन द आईवी रूट, क्योंकि आईवी रूट जो है आईवी रूट जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है. और इंट्रामस्कुलर में कुछ ड्रग जो है वो लॉस हो जाता है, तो उसी की वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम होती. सबक्यूटेनियस इंजेक्शन,
it's the method in which the drug is administered beneath the skin with the help of a syringe. तो इसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं जस्ट beneath the skin. इसकी एडवांटेजेस में इट्स अ रिलायबल मेथड एंड इट्स सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज पॉसिबल. जिस तरह इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, वो खुद को इंसुलिन लगाते. डिसएडवांटेजेस में इरिटेशन, और लोकली स्किन की इरिटेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं. स्लो एब्जॉर्प्शन इज कंपेयर टू इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और रिपीटेड यूज़ ऑफ इंसुलिन क्लेक्सेन की वजह से जो सबक्यूटेनियस फैट होता है उसकी एट्रोफी हो सकती है. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ these are the disadvantages of the subcutaneous route of drug administration. So it was the third type of injection. The second main classification of parenteral route was inhalation. It can be defined as it is the method in which the drug is taken into the lungs and from where it is absorbed into the systemic circulation. तो इसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू इनहेलर्स के थ्रू, पम्प्स के थ्रू. ब्लड पहले ड्रग जाएगा लंग्स में जो है वो एब्जॉर्ब होगा इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है ब्लड जो है वो फिर ड्रग को पहुंच जाता है इनटू द ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी. सो इसकी 3 मेथड्स हैं. वन इज एरोसोल में इनहेलेशन, जिसमें द ड्रग इज इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल, जिस तक के सल्ब्यूटामोल हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एस्थमेटिक दमे के पेशेंट में हम देते हैं. पाउडर इनहेलेशन, सोडियम क्रोमोगलाइकेट हो गया, द ड्रग इज इन पाउडर फॉर्म. और गैस इनहेलेशन, द ड्रग में बी इन द फॉर्म ऑफ गैस लाइक एनेस्थेटिक एजेंट्स, हेलोथेन हो गया. तो ड्रग में भी इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल, पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर, जिस तरह सल्ब्यूटामोल हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया. पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट, जो एस्थमेटिक पेशेंट में एलर्जी में हम देते हैं. और द ड्रग में भी इन द फॉर्म ऑफ गैस, जिस तरह एनेस्थीसिया के लिए हेलोथेन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, वो हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस. सो इसकी एडवांटेजेस में जनरल एनेस्थेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन के लिए हम इसी रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं. पेन रिलीफ, नाइट्रस ऑक्साइड, जिस तरह एज आई मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड के पेन रिलीफ के लिए हम नाइट्रस ऑक्साइड दे सकते हैं थ्रू दिस रूट. मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स, इस मेथड जो है इसका साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं. एस्थमेट मैनेजमेंट में भी हम इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस में स्पेशल ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, जिस तरह इनहेलर्स हो गए, पम्प्स हो गए. अगर बहुत सारा ड्रग है लेकिन इनहेलर नहीं है या पंप नहीं है तो वी कैन नॉट एडमिनिस्टर दिस ड्रग. इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि ये हम लंग्स के थ्रू लेते हैं तो ड्रग जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाते जाते इरिटेशन कर सकता है एंड इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. Topical, it is the method of drug administration in which the drug is locally applied on the skin, the nose, the ear, the eye, oral or vaginal mucosa. इसमें हम locally, topically हम drug apply करते हैं और the drug will produce its effect locally. It's a reliable method, it's easy, patient can simply easy method
सेल्फ एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग, टॉपिकली हम खुद भी लगा सकते हैं, मिनिमल सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ड्रग को हम लोकली लगाते हैं तो सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स उसके। डिसएडवांटेजेस में से बाज़ का ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट कैन प्रोड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स, इरिटेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजा हो सकता है एंड एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिव reactions. It is the disadvantages of topical route of drug administration. So thank you very much. With this we comes to the end of this unit, that is roots of drug administration. So एक शॉर्ट सी रिवीजन कि हमने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को टू मेन क्लासेस में डिवाइड किया, एंटेरल रूट एंड पेरेंटल। एंटेरल में हम ड्रग देंगे थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, उसमें 3 सब टाइप्स थी। ओरल हम थ्रू माउथ देते हैं, सबलिंगुअल we administer the drug just below the tongue, and the third was rectal route which is given through the rectum. Then we studied about the second, parental, par mean beside and enteral mean GIT. So those methods which are applied to administer a drug other than gastrointestinal tract. तो इसमें हमने 3 मेन क्लासेस पढ़ी, इंजेक्शंस, इनहेलेशंस एंड टॉपिकल। इंजेक्शंस में फिर हमने सब टाइप्स पढ़ी, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राआर्टिकुलर, इंट्राडर्मल। Inhalation, the drug is taken into the lungs from where it is absorbed into the systemic circulation. उसके लिए हम स्पेशल पम्प्स और inhalers यूज़ करेंगे. Then we studied in detail about the topical route which is applied locally on the skin and the mucosa. Thank you very much.